friends, let's discuss a very important question of chemistry. Why benzene does not undergo electrophilic addition reactions? We know that ethene contains carbon-carbon double bond and it can decolorize bromine water. Okay, please. Or it undergoes the electrophilic addition reaction very easily, in which many compounds are added on carbon-carbon double bond and we get a lot of products. And this is the most important example, that is addition of bromine. What we get? We get this compound Br HNH 1,2-dibromoethane 1,2-dibromoethane, and it is the test for unsaturation, or it is a test for presence of carbon-carbon double or carbon-carbon double, or you can say carbon-carbon triple bond in any hydrocarbon. If any hydrocarbon decolorizes bromine water, it means it may contain carbon-carbon double or carbon-carbon triple bond. Very important test for the unsaturation present in any hydrocarbon. But benzene, right, please, benzene, which is the resonance hybrid of these two structures, does not undergo this reaction. This is the resonance hybrid of these structures 1 and 2. C6H6 is the molecular formula of benzene. Okay, please, benzene contains 3 pi electrons, means it is a rich source of pi electrons. So it must undergo, theoretically it must undergo electrophilic addition reactions, but it does not. It does not. Why? The question is why? Okay, please. Now suppose we try to add, or we try the electrophilic addition reaction on benzene ring, and theoretically we assume it undergoes. Okay, please. Then what happens? What happens? You see the benzene here, benzene ring. Okay, please. Double bond and double bond, double bond. Okay, please. Now when electrophile attacks, let's say electrophile E positive attacks here we get the positive charge, and then at this carbon nucleophile attaches later on. ऐसा होता है यहाँ पर, इस रिएक्शन में ऐसा होता है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा इस कार्बन पर, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा दूसरे कार्बन पर, इसमें ये होगा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर, देख लीजिए प्लीज। तो पहले यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पहले इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बाद में यहाँ लग जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल पहले यहाँ लग चुका है। ओके प्लीज, एंड दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द प्रोडक्ट formed, addition product of benzene. But the compound, the resulting compound, the product obtained is highly unstable because it loses its aromaticity, which makes benzene highly stable. अगर ये रिएक्शन हो जाती है तो ये प्रोडक्ट बनता है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल है, एंड थर्मोडायनेमिकली, केमिकली, केमिस्ट्री के एंगल से, थर्मोडायनेमिक्स के एंगल से ये ऐसा होना संभव नहीं है, या ऐसा होना प्रोबेबल नहीं है, या ऐसा होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो आप कह सकते हैं, नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होता। इसलिए बेंजीन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता। Here the aromaticity is lost. These 2 carbons are in sp3 hybridized state, and 1, 2, 3, 4 carbons are in sp2 hybridized state. aromaticity का मतलब क्या होता है कि अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन क्या है sp2 hybridized स्टेट में है, राइट। मॉलिक्यूल क्या प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं होगा। तो इस तरह की ये कई कंडीशंस होती हैं एरोमेटिसिटी की, और ये जो मॉलिक्यूल है, जो स्पीसीज बनेगी, ये इन कंडीशंस को पूरा नहीं करती है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। और ये रिएक्शन हम कह सकते हैं सीधे तरह से, द रिएक्शन इज नॉट
feasible thermodynamically, right? लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्यों होता है, वो बेंजीन क्यों दिखाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेंजीन। उसमें देखते हैं उसमें क्या होगा प्लीज, लेट्स सी उसमें कैसे ऐसा क्या हो जाता है। देखिए प्लीज, देखिए जब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे अटैक करेगा वो रिएक्शन करने के लिए, या आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, ठीक है, और ये ई यहाँ अटैच हो जाता है, और जो हमारे पास चीज बनेगी यहाँ पर देख लीजिए प्लीज, ऐसे करके ये आ गया, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज के पूरे इसमें रिंग पे फैल जाता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पर क्या है, ई है और एच है, तो ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कब? जब बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, रिएक्शन के दौरान ये चीज बनती है, राइट। कार्बोकैटायन है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये भी ओके। यहाँ पर भी क्या, ये कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में, ये भी नॉन एरोमेटिक है स्पीसीज, राइट। लेकिन ये जो स्पीसीज है, इट ट्राइज वेरी हार्ड टू रिगेन इट्स एरोमेटिसिटी, एंड इट इज the aromaticity is regained by snatching this bond from hydrogen। ये जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है, इस बॉन्ड को स्नैच कर लेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से वापस ले लेगा, एंड व्हाट वी गेट, सो वी गेट द प्रोडक्ट व्हिच इज एरोमेटिक इन नेचर। ये क्या है, ये यहाँ पर आ गया और ये H पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया गया है, ओके। और जो स्पीसीज बनती है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो भी बेंजीन की तरह से ही स्टेबल है, उतना ही स्टेबल है, ठीक है। कई बार स्टेबिलिटी बढ़ भी जाती है, थोड़ा बहुत घट भी सकती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ई, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ई, कि ई कौन सा है, Cl है, Br है, OH है, NH2 है, Cn है, और ये बहुत से कंपाउंड यहाँ पर बन जाते हैं। कौन सी रिएक्शन से? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ओके प्लीज। तो एडिशन में क्या है, एरोमेटिसिटी लॉस्ट होने से वो रिएक्शन नहीं होती है, और रिप्लेसमेंट रिएक्शन में एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है, रेस्टोर हो जाती है, इसलिए वो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। एंड दिस आर्टिकल और क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट, ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।